Hello everyone, here I'm starting with another topic of your chapter 7, that is getting to know plants. As in the previous video, we have discussed about the parts of leaf. A leaf is having the four major parts, that is petiole, lamina, vein and midrib. As you can see, these all parts are also marked in this picture. We also know that root helps in taking water from soil to the other parts of plant. Then if excess of water is present in plant, then what would happen? अगर एक प्लांट के अंदर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स तो क्या होगा? So in that case, one process is occurring by the help of leaves, and that process is called as transpiration. In general, we say that when water gets converted into water vapor, the process is called as evaporation. वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं. But when this process takes place in a plant, it is called as transpiration. It is a process in which water comes out of leaves in the form of water vapors. जो वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, अगर वो वाटर प्लांट बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, सो इट विल गेट कम आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. वो लीव्स से बाहर निकल के आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. Plant releases a lot of water in this form, that is water vapors, into air. फिर यहाँ से जो लीव्स ने वाटर एक्सक्रीट किया, बाहर निकाला, वो कहाँ चला जाता है? एयर के अंदर चला जाता है. This process helps in removing excess of water from the plant body. अगर प्लांट बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसपिरेशन होता है. It occurs through stomata which is present on leaf. ये किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है, या फिर ये स्टेम के थ्रू भी हो सकता है, बिकॉज स्टेम के ऊपर भी क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, और some other parts of shoot system also, but mainly it occurs through leaves by the help of stomata. शूट सिस्टम के और भी पार्ट्स हेल्प करते हैं, बट मेनली जो इस प्रोसेस को करता है वो क्या है? लीव्स. और लीव्स के अंदर भी कौन सा पार्ट करता है? दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. नाउ वी विल डिस्कस दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बाय एन एक्टिविटी. In this activity, you have to take a potted plant, some water, a polythene bag and a rubber band, or you can take the thread also. You have to take a potted plant and water that plant. आपको एक potted plant लेना है, उसमें पानी डालना है. Then you have to cover the potted plant by the polythene with the help of rubber band or thread. आपको क्या करना है? जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, यू हैव टू टेक अ पॉटेड प्लांट एंड यू हैव टू कवर अ पार्ट ऑफ प्लांट बाय पॉलीथीन बैग, और देन you have to tie it with thread or by rubber band. Now keep this plant in sunlight for few hours. आप इस प्लांट को थोड़ी देर के लिए कहाँ रख देंगे? सनलाइट में रख देंगे for some hours, and after some time what you observe? You will observe some water droplets on the polythene surface. आपको पॉलीथीन सरफेस के ऊपर क्या दिखाई देंगी? कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी. It is on the inner cover of the polythene, not on the outer cover. So from where does these water droplets comes up? क्योंकि हमने तो इसे कवर कर दिया है, बाहर से इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? So these water droplet comes out from the leaves in the form of water vapors and get stick to polythene bag. और वो polythene bag के ऊपर stick हो गई. So this loss of water is due to transpiration. This shows that कि आपका जो leaf है वो क्या करती है? water excrete out करती है, remove करती है अपनी body में से, so that उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो मेंटेन रह सके.
So one process is explained, that is transpiration. Now we will discuss about what does the leaf contain. एक leaf के अंदर क्या present होता है. For this we are again doing an activity and we would require a leaf, spirit. Spirit means alcohol, beaker, test tube, burner, water, watch glass and iodine solution. So these things are required for it. What we have to do? We have to take a leaf in a test tube and firstly we will take a leaf and we will put it in water and we will boil that water. हम एक लीफ लेंगे, उसे एक बीकर में डालेंगे, उसमें पानी होगा और उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे. देन वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर हम क्या फिल कर देंगे, स्पिरिट यानी कि इथेनॉल या अल्कोहल, और फिर उसे हम इसी बीकर के अंदर वापस रख देंगे. अब हम इसे डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं. वाई? जस्ट बिकॉज अल्कोहल को अगर हम डायरेक्टली हीट करेंगे तो वो फायर कैच कर लेता है. सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, उसे बीकर के अंदर जिसमें पहले से पानी प्रेजेंट था उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाल के फिर उसमें लीफ डाली और उसी के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, स्पिरिट या अल्कोहल ऐड कर दिया. आफ्टर हीटिंग फॉर दिस लीफ you will observe that after some time the green color of the leaf will get come out. ये जो ग्रीन कलर है लीफ का वो धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलने लगेगा एंड इट विल गेट डिज़ोल्व इन द स्पिरिट. वो जो टेस्ट ट्यूब में आपने लिक्विड लिया है दैट इज स्पिरिट, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा. नाउ यू विल टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड यू हैव टू वॉश दिस इन वाटर. आप इस लीफ को इसमें से बाहर निकाल लेंगे जब उसका ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा. एज यू कैन सी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर. फिर आप उसे वाटर के अंदर वॉश करेंगे एंड देन आफ्टर दिस यू विल पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट. अब जैसे ही मैंने आयोडीन सोल्यूशन का नाम लिया तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, इन चैप्टर 2 यू हैव यूज्ड आयोडीन सोल्यूशन फॉर द टेस्ट ऑफ स्टार्च. So similarly, if I am using iodine solution over here, it means I am testing the content or the amount of starch in this leaf. So basically what I observe, the leaf appears blue or purplish in color. जो मेरी leaf है वो थोड़ी blue या purplish color की हो गई. तो this shows that the presence of starch in the leaf. ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो मेरी लीफ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है. एंड एज वी नो दैट स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है. प्लांट प्रिपेयर्स फूड. वी नो दैट प्लांट्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर्स फूड एंड दे प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और उस खाना को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस बेसिकली इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड इन प्लांट्स बाय लीव्स. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपके जो प्लांट की लीफ है वो क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है. दैट्स वाई I told you leaf is called as the kitchen of the plant. लीफ को हम क्या बोलते हैं, kitchen of plant बोलते हैं. Now how does a plant prepares food? So plant uses water and carbon dioxide to make or prepare food. Plant क्या करता है, वाटर यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है और क्या प्रिपेयर कर देता है, फूड प्रिपेयर करता है. और फिर ये जब प्रिपेयर कर रहा है तो ये क्या क्या रिलीज़ करता है साथ में, इट रिलीजेस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन और क्या देता है साथ में, आपको फूड देता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब अगर हम फोटोसिंथेसिस वर्ड को देखें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ फोटो एंड अनदर इज़ सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट and synthesis means to prepare. It means food is prepared in the presence of sunlight in the leaves of the plant. Photosynthesis एक process है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं
by the help of water, carbon dioxide in the presence of sunlight. So you can see this in picture. A plant is here, sunlight is coming, carbon dioxide from air and water from soil. ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी रॉ मटेरियल्स हैं, ये इन्हें यूज़ करता है. कौन यूज़ करता है? प्लांट. एंड विल प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और साथ में क्या रिलीज़ करता है? ऑक्सीजन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. दैट्स वाई इसकी जो लीफ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च. बिकॉज जो ग्लूकोज है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट की दो फॉर्म्स होती हैं, वन इज़ ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च. तो शुगर का जो कंटेंट है उसे हम ग्लूकोज बोलते हैं एंड अनदर इज़ स्टार्च. तो ये अपना जो फूड स्टोर करके रखता है वो लीफ के अंदर स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो इट शोज दैट अ लीफ कंटेन्स starch. That's all for today. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and share.